Now, today we will start new chapter, current electricity, chapter 2. Now, first question of this chapter is, what is electric current? Electric current is defined as the charge flowing in a definite direction through any section of the conductor in 1 second or per unit time t. So electric current is defined as the charge flowing. Student, कोई भी कंडक्टर है आपका, फॉर एग्जांपल दिस वन इज कंडक्टर, इसमें क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है इन ए डेफिनाइट डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। चार्ज को हम क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज किसी कंडक्टर में या किसी वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू इज द चार्ज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में आपका चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, वन सेक्शन ऑफ द वायर। So, electric current is defined as the charge flowing in a definite direction, in a particular direction, through any section of the conductor. For example, this is the one section of the conductor per unit time or in 1 second. ठीक है स्टूडेंट, and that is called electric current. So, electric current is defined as the rate of flow of charge. Rate of flow of charge means charge flow per unit time. That is called electric current. So I is equal to, current is represented by symbol I. I is equal to Q by T. Q is the charge flow and उस चार्ज को कितना टाइम लगा फ्लो होने में किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए डेफिनाइट डायरेक्शन. सो दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है स्टूडेंट, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. Now, there are two types of charges flow. If the rate of flow of charge is steady, it means flow of charge is a constant. Charge does not change with time. It means at any section or at any time, charge in a conductor is always Q. Charge in a conductor is always Q means rate of flow of charge is steady. Steady means constant. Any section of the conductor at any given time charge is always Q. Then current I is equal to Q by T. T time के लिए चार्ज Q flow हुआ, that is called a electric current. So if the rate of flow of charge is steady, then formula for current is I is equal to Q by T. But if rate of flow of charge varies with time, इट मीन्स चार्ज क्या कर रहा है स्टूडेंट, आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है. चार्ज इज नॉट स्टडी, चार्ज इज नॉट कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल हमारा चार्ज क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है. उसकी डायरेक्शन भी हो सकता है वेरी करे, उसका मैग्नीट्यूड भी हो सकता है वेरी करे. फॉर एग्जांपल दिस इज अ करंट एंड दिस इज द टाइम एक्सिस. दिस इज द करंट एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस. इट मीन्स दिस करंट इज नॉट स्टडी, करंट इज नॉट charge is not steady. Charge is not steady. Charge is varies with the time. This is a Q. Charge is varies with the time. So if the charge is varies with the time means rate of flow of charge is varies with time. Then current at any time. Student, this one is instantaneous current. This is a constant current. I is equal to Q by T. But in this case, when charge Q is vary with time, it means charge is not steady. Charge vary कर रहा है. So किसी particular instant of time, for example this is a small time interval. This is a small time interval. मैंने आपको पहले बोला हुआ small time interval को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेटिव के साथ dt. dt is the small time interval. तो for example इस small time interval में जो चार्ज आया, चार्ज फ्लो किया, वो कितना फ्लो किया, स्मॉल चार्ज dq. Then only at this instant of time करंट क्या आएगा आपका, I is equal to dq by dt. So when the rate of flow of charge varies with time, क्योंकि हम पर्टिकुलर टाइम के लिए तो स्टूडेंट बोल ही नहीं सकते कि हाँ भाई इसने 5 घंटे में इतना चार्ज फ्लो किया है, बिकॉज चार्ज इज वेरीज विद टाइम. तो हमें क्या लेना पड़ेगा फिर, एक स्मॉल इंटरवल. क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लेना पड़ेगा. उस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जितना चार्ज फ्लो किया है, दैट dq by dt. dq मीन्स स्मॉल चेंज इन चार्ज.
पर यूनिट स्मॉल चेंज इन टाइम, जितना चार्ज चेंज हुआ है, क्योंकि चार्ज तो वेरी कर रहा है, इट मीन्स चार्ज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज वेरी कर रहा है, तो स्मॉल चेंज इन चार्ज with respect to small change in time, that is called a current, and that is a instantaneous current. Instantaneous means at any instant of time. So at that time I is equal to dq by dt. Dq means derivative. This d stands for derivative. This term is used when we evaluate small changes. We evaluate small changes. So यहाँ पे क्या हो रहा है, small change means small flow of charge in small time interval dt. So this जो आपका करंट आया वो सिर्फ इसी इंस्टेंट पे आया, इसी स्मॉल टाइम इंटरवल dt पे आया. सो दैट्स व्हाई दिस करंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट. ठीक है स्टूडेंट. और ये तब लगाना जब आपका चार्ज क्या करे, टाइम के साथ वेरी करे, दैट इज नॉट कांस्टेंट. एंड इफ द चार्ज इज कांस्टेंट, आपका एवरी टाइम चार्ज क्या फ्लो कर रहा है, हर सेक्शन में, कंडक्टर के किसी भी सेक्शन में क्या वो फ्लो कर रहा है, इट मीन्स चार्ज वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट है. तो फॉर एग्जांपल हमने इस टाइम इंटरवल टी में करंट निकालना है, ये टोटल टाइम टी है और चार्ज तो ऑलवेज क्या है, क्यू है, दैट इज नॉट वेरी विद टाइम. इन दैट केस टी टाइम में लेट्स सपोज क्यू चार्ज फ्लो किया तो करंट क्या आ गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी. एंड इफ चार्ज इज वेरी विद टाइम देन आपका करंट क्या आएगा, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी. डी क्यू मीन्स स्मॉल चेंज ऑफ चार्ज इन स्मॉल चेंज इन टाइम. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट. सो ये आपका करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस करंट एंड एक्स एक्सिस टाइम. और यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, टाइम आपका इंक्रीज करी जा रहा है, वो तो टाइम तो ऑलवेज बढ़ता है, लेकिन करंट क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट. इसका मतलब जो आपका ग्राफ ए आया वो क्या है, स्टडी करंट. वो क्या है, स्टडी करंट मींस करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे स्टूडेंट समझ लो 5 एम्पियर है. अब टाइम चली जा रहा है, टाइम आपका समझ लो 1 सेकेंड है, फिर नेक्स्ट आ गया 2 सेकेंड, फिर नेक्स्ट आ गया फॉर एग्जाम्पल 3 सेकेंड, बट करंट ऑलवेज क्या है, 5 एम्पियर. सो जो आपका ये ग्राफ ए आया स्टूडेंट, वो क्या आया, स्टडी करंट विच डज नॉट वेरीज विद टाइम. सो दिस इज द ग्राफ ए. ग्राफ ए इज, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्टडी करंट, मीन्स करंट डज नॉट वेरी विद टाइम. नाउ ग्राफ बी. ग्राफ बी स्टूडेंट क्या है आपका ग्राफ बी ये वाला है कि आपका टाइम के साथ करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है और करंट भी साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड में आपका करंट आया 2 एम्पियर, दिस इज करंट वर्सेस टाइम. नेक्स्ट 2 सेकेंड में लेट्स सपोज आपका करंट आ गया 4 एम्पियर, तो क्या हो रहा है, करंट भी इंक्रीज कर रहा है और आपका टाइम तो इंक्रीज ही करता है, करंट भी, टाइम भी इंक्रीज कर रहा है और करंट भी इंक्रीज कर रहा है. सो बी पार्ट आपका क्या आ गया, वेरी करंट. करंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट. सो ग्राफ बी आपका क्या है, करंट इज नॉट कांस्टेंट, करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टाइम. और ग्राफ सी भी आपका क्या है स्टूडेंट, ये देखिए, और करंट भी क्या टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, करंट इज नॉट कांस्टेंट. सो जो आपके ग्राफ्स बी एंड सी हैं दोनों, दिस वन इज बी ग्राफ, this is a straight line, this one is B graph. It means current increases with time, means current does not, करंट ऑलवेज क्या कर रहा है, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मीन्स वेरी, करंट जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम. और जो सी ग्राफ है वो कैसा स्टूडेंट, इसमें भी क्या कर रहा है, करंट क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. सो बी एंड सी बोथ ग्राफ्स, बी एंड सी बोथ ग्राफ्स के हैं आपके वेरिंग करंट. कौन से हैं, वेरिंग करंट बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड वेरी विद टाइम. अब ग्राफ डी क्या आ गया, ये वाला ग्राफ डी, ऊपर प्लस नीचे क्या है, माइनस. अब क्या हो रहा है, और उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. करंट का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, करंट का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है टाइम के साथ,
और इसकी डायरेक्शन भी वेरी कर रही है। सो जो ग्राफ डी है आपका स्टूडेंट वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। हर एक पीरियड के बाद, ये देखिए ये एक पीरियड आ गया, हर एक पीरियड के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव। इट मीन्स इस करंट को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में जो करंट आता है स्टूडेंट वो कौन सा करंट है, ऑल्टरनेटिंग एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे घरों में हम करंट फ्लो कर रहा है, हमारे घरों में जो भी सब कुछ चल रहा है वो कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। उसमें क्या हो रहा है, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मीन्स हर एक फिक्स पीरियड के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, टाइम हो रही है। फिक्स टाइम पीरियड के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लें यहाँ पे 50 सेकंड, हर 50 सेकंड बाद इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो इन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इट्स डायरेक्शन चेंजेस एंड मैग्नीट्यूड स्टूडेंट क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो आपका वेरी कर ही रहा है, ये फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, करंट का चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर से कम हो गया, अब नेगेटिव हो गया, फिर से बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर से कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली वेरी विद टाइम एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हर 50 सेकंड बाद इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। So this graph D is alternating current. Now units of electric current. So I is equal to Q by T. I is equal to Q by T charge per unit time. And student charge के यूनिट क्या होते हैं आपके, कूलम, एंड टाइम के क्या होते हैं, सेकेंड। कूलम को हम कैपिटल C के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्या आ गया, कूलम पर सेकेंड। So coulomb per second collectively is called ampere, is called ampere। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स जो हमारे करंट के हैं स्टूडेंट वो क्या है, एम्पियर, क्या है, एम्पियर। एंड कोलेक्टिवली एम्पियर इज कूलम पर सेकेंड। सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 कूलम। ठीक है स्टूडेंट, मैं अभी आपको बता चुका हूँ जो चार्ज के यूनिट्स हैं वो क्या है, कूलम्स हैं, एंड टाइम इज 1 सेकेंड। टाइम के यूनिट्स क्या हैं आपके, सेकंड्स। देयरफॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करंट इज क्या आगे, 1 कूलम पर सेकंड। आई इज इक्वल टू Q बाय टी, चार्ज के आपके यूनिट्स हैं 1 कूलम, उसका मैग्नीट्यूड 1 ले लिया, और यूनिट्स क्या हैं, कूलम, टाइम ले लिया फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड। सो क्या आ गया, 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड कोलेक्टिवली 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर, is called ampere, which is the standard international unit of current. So if Q is equal to 1 coulomb and time is 1 second, then current कितना आ गया स्टूडेंट आपका, 1 ampere। करंट कितना आ गया, if charge is 1 coulomb, its magnitude is 1 and time is 1 second, तो जो हमारा करंट आया वो कितना आया, 1 कूलम पर सेकेंड, एंड कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। एम्पियर को स्टूडेंट हम कैपिटल A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो करंट आया हमारा 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर की क्या डेफिनेशन आ गई, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज सेट टू फ्लो थ्रू ए वायर इफ एट एनी क्रॉस सेक्शन, किसी पार्ट में, वायर के किसी पार्ट में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो वो जो करंट आएगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर। वो क्या होगा, 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज सेट टू फ्लो थ्रू ए वायर इफ एट एनी क्रॉस सेक्शन, किसी पार्ट में कितना चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। सो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, देन दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। ठीक है स्टूडेंट, सो 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आ गई। लेट्स सपोज किसी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर यूनिट टाइम t। किसी टाइम t में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल n। चार्ज कॉन्स्टिट्यूट बाय n इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E इज अ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E इज अ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो E इज अ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर फॉर एग्जांपल हमारा कंडक्टर है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E है तो n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, Ne। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, Ne। फॉर एग्जांपल कोई वायर है, हमने इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, इस वायर में लेट्स सपोज कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम t में, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, Ne। सो टोटल चार्ज कितना आ गया, Q इज इक्वल टू Ne। सो चार्ज कॉन्स्टिट्यूट बाय n इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, Q इज इक्वल टू Ne। एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है स्टूडेंट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें पता है I इज इक्वल टू Q बाय T, और Q क्या आया स्टूडेंट आपका, Ne। टोटल चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, T टाइम में। सो अब क्या फार्मूला आ गया, इन द रिलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट क्या आ गया, I इज इक्वल टू Ne ओवर T। I इज इक्वल टू Ne ओवर T, वेयर Ne इज द टोटल चार्ज कॉन्स्टिट्यूट बाय कंडक्टर इन टाइम T एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है स्टूडेंट। सो नाउ कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट हैज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाय T। कह रहा है एज चार्ज भी क्या आपका स्केलर, चार्ज क्या आपका स्केलर, इट हैज़ नो डायरेक्शन। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है। स्टूडेंट आपके घरों में वायर्स लगी हुई हैं, टेढ़ी मेढ़ी जैसे मर्जी लगी हुई हैं, तो उनमें क्या फ्लो कर रहा है, ये वायर्स हैं, कोई यहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, तो क्या फ्लो कर रहा है चार्ज, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। सो चार्ज क्या आपका स्केलर, जिसकी कोई डायरेक्शन ना उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। और टाइम में तो आगे ही जाना है, ये तो ऑलवेज फॉरवर्ड जाएगा, टाइम कभी पीछे नहीं आ सकता, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। इसका मतलब ना चार्ज की डायरेक्शन है ना टाइम की डायरेक्शन है, तो इसका मतलब करंट भी, आपकी करंट की भी क्या आएगी, नो डायरेक्शन। और जिसकी नो डायरेक्शन हो उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। सो करंट इज ए scalar physical quantity as both charge and time are scalars, therefore electric current is a scalar quantity। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट हमारा क्या कंसेप्ट आ गया, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डेफिनाइट फिक्स्ड डायरेक्शन। कन्वेंशनल करंट, नेक्स्ट क्या आ गया आपका, कन्वेंशनल करंट। सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज ए नेगेटिव चार्ज। अब क्या फ्लो कर रहा है स्टूडेंट, आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। अब करंट की डायरेक्शन भी क्या आ गई स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, उसी तरफ आ गई। इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज प्लस Q फ्लो कर रहा है तो स्टूडेंट जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी किस तरफ होगी, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ। किस तरफ होगी, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, क्योंकि इसकी अपनी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। सो करंट की सबसे पहले क्या है, आगे आपकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। फिर से देख लीजिए, ये आपके पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी क्या आ गई, अलोंग द पॉजिटिव चार्ज। सो कन्वेंशनल करंट इज द करंट whose direction is along the direction of the motion of positive charges under the action of electric field। For example this is electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ये चार्जेस आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो करंट की डायरेक्शन आ रही है वो किसके अलोंग आ रही है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है स्टूडेंट। सो कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन किसी के दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, उस डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है स्टूडेंट।
अब पॉजिटिव चार्जेस देख लिए, अब हमने क्या देखनी है, नेगेटिव चार्जेस। अब ध्यान से देखिए क्या फ्लो करेगा, अब यहाँ से क्या फ्लो कर रहे हैं स्टूडेंट, आपके नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। क्या फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अब सुन ध्यान से देखिए, करंट की डायरेक्शन क्या आई, ऑपोजिट टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। फिर से देख लीजिए, ये आपके क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अब करंट की डायरेक्शन क्या आई, ऑपोजिट टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन along the direction of positive charges and opposite to direction of negative charges, opposite to direction of negative charges. So conventional current due to motion of electrons or negatively charged is in the direction opposite to motion of electrons. So student आपको समझ लग गई है कि जो करंट की डायरेक्शन है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई अपनी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। करंट की डायरेक्शन along the direction of positive charges, motion of positive charges and opposite to the motion of negative charges or electrons। ठीक है स्टूडेंट, so this is called conventional current। ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट आ गया मैकेनिज्म ऑफ करंट कंडक्शन इन मेटल्स। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।